Hello everyone. Yes, we will begin the workshop very shortly. हो गया रत्नेश जी, मैंने असम वाले को बोल दिया कि उसको फाइंड अप कर दो, ठीक है? Good morning, sir. यस, गुड मॉर्निंग. यस मैम. यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम. वेलकम मैम. Thank you. How are you? यस मैम. आई एम फाइन मैम. हाउ आर यू मैम? It's great to hear you, and we are all excited about to hear about satellite and all your experiences. यस मैम. It's a great work you people are doing. So my student from the rural belt, uh, they will be very excited and hopefully they will enjoy the session. I welcome you यस all मैम. from my school. यस, थैंक यू सो मच मैम. एंड रत्नेश जी, प्लीज रिकॉर्डिंग अभी थोड़ी देर के बाद ऑन. ऑलरेडी आई थिंक ऑन. ओके फाइन, रिकॉर्डिंग इज ऑन. Okay, sir. Right. Pradesh ji, can we start the session because it's now 76 number have already come. Yeah, ma'am. Amandeep ma'am, can we start the session now? Yes. Sure. Yes, now I got the connection back also. Thank you so much. Ma'am, my internet connection also came back. Some No problem was problem. there. No In the problem. internet. Actually, ma'am, I was at handling two workshops at same time. One in Assam is going right now, and second Yes, was yes. in Punjab, and third we have in Bihar. So today we That's have good. three hectic sessions. Okay, so Okay. ma'am, yes, Ratnesh ji, I request you please Yes. take the national anthem on the screen. Yes, ma'am. Yeah, and I request all the children, please don't share the screen. Please don't share the screen, all of you. And I request also that nobody will share the screen and nobody will on the mic. This is my request to all the students. Please do that. Just a Please do minute. that. Somebody sharing the screen. Or okay, I will just. So I'm just opening on some of the videos. Okay. I will just check the agenda. Okay. Wait. Yes, children, you are going to be addressed by three great people of our country. It's a great day for Punjab. It's a great day for India. It's a great day for every one of us. As we all are connected from different state of India, you all are connected from Punjab. Mr. Deepak Sharma from IIT Kharagpur, he is right now connected from Bihar, and Ratnesh Misra ji, he is connected from Nasik, Maharashtra, and Manvi Dhawanji. So you have a very great day. And Denu Lasmi, she is connected from Tamil Nadu. Akshita also, she is connected from Tamil Nadu. So we are bringing all the country people together in one platform. That is the beauty of IDYM Foundations. तो हम बच्चे अगर हिंदी में एड्रेस करेंगे तो भी चलेगा ना आप लोग को, क्योंकि यू ऑल फ्रॉम पंजाब, राइट? Yes, sir. मुझे लगता है Yes. हिंदी लगता है ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा पंजाब के लिए, बिकॉज पंजाब पीपल आर वेरी ग्रेट. एंड यू नो, पंजाब पीपल की सबसे बड़ी खासियत है कि पंजाब के लोगों की कि भारतीय सेना में जो उनका योगदान है, और भारतीय एयरफोर्स हो, नेवी हो या आर्मी हो, वो बहुत ही बड़ा है. लास्ट ईयर 2020 के इसी ईयर में जनवरी मंथ में मैंने BS धनवा जी से मिला था, एंड ही इज ऑल्सो फ्रॉम पंजाब. सो I have already so much affection about Punjab because lot of great people coming in army, air force and navy from Punjab. I met him. I had a talk with him for around 15 to 20 minutes. He's really a great man. He was also the person behind the Balakot air strike. So, and now we are in Punjab, so we are very happy. Yes, Ratnesh ji, can you share the screen for national anthem? Yes, sure. Good morning, Amandeep ma'am. Yes, so I'll just share now and then we'll start. Yeah. Yes, please. आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जैसे ही नेशनल एंथम हम प्ले करें तो आप अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाइएगा एंड देन विल स्टार्ट. रवि जी, जब स्क्रीन दिखेगा तो बताइएगा. Yes. Please don't play now. I will just ask them. Okay. So just a minute, Okay. Yes. Everybody, please stand to your place. सभी लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, क्योंकि हम नेशनल एंथम चालू करने वाले हैं. और बच्चों, आपसे भी से अनुरोध रहेगा कि आप वीडियो ऑन रखें.
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद। Jai Hind and Jai Bharat. Yes, now I request Ratnesh ji, please play the promo video number 1. And after that, the welcome address will be given by Akshita from Tamil Nadu. And after that, Engineer Deepak Sharma, he will be addressing all of you for 8 to 10 minutes from IIT Kharagpur. Then it will be followed by Engineer Ratnesh Misra from IIT Bombay, project manager of Pratham satellite team. He was the man behind Pratham satellite that is rotating in the space right now. And every day it is rotating, going to Punjab also. Then it will be addressed by Manvi Dhawan, a great scientist, great inspiration for all the women and girls of our country. And she will be addressing all of you. Then after that, the vote of thanks will be given by Denu Lasmi from Tamil Nadu. And then there will be a small address by some school authority. And then we will close the session. So this is how the workshop will go. Thank you everyone for joining us. Yes, please play the video. Okay. So, yes, वाला जो Ravesh, प्रोमो है ना उसको 3 to 1 वाला जो प्रोमो है ना उसको प्ले कीजिए. हाँ. Yes. Got it? कोई स्क्रीन दिख रहा है क्या क्या? I'll save the link. स्क्रीन तो यस नहीं दिख रहा है. थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कीजिए. इट्स नॉट विजुअल. Wait, I'll play from here. Yeah, okay, fine. पूरा बड़ा कर लीजिए. तो कैसे बड़ा कर लीजिए. स्क्रीन को बड़ा कर लीजिए. वो खराब हो रहा है.
Yeah, yes, Okay, Ravija. yes. So now I request Akshita Marlian from Tamil Nadu. Please start the welcome speech. Akshita, can Yes, you hear sir. me? Yes, sir. Please on the video and start the your welcome speech. A very good morning to each and everyone present here. First of all, I would like to thank each and every one of you for being here with us today. Before we get started, I would like to express my sincere appreciation to all who generously helped us to make this workshop come together to become a success. I would like to thank the founder of IDYM Foundation, Mr. Ravishankar Kumar, for giving me this wonderful opportunity to welcome you all. We are delighted to welcome Engineer Deepak Sharma, Kharagpur, Engineer Ratnesh Mishra, IIT Bombay, Engineer Manvi Dhawan, IIT Bombay. In today's scenario, online classes and workshops, webinars and conferences are quite common. Igniting Dreams of Young Minds Foundation stands for upholding the vision of Dr. Kalam by providing knowledge regarding satellite technology. In order to make our country self-reliant in defense sector, we need to be empowered. Hope you all will get benefited and use your latent potential for the progress of our country. Wish you all a wonderful time. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Akshita. Thank you so much for your welcome speech. Now I request Engineer Deepak Sharma to please unmute yourself and address the student of Punjab. They are waiting from long time. Yes. Please kindly on your video. Yes, thank you. Yes, please. My dear friends and the director of IDYM and engineer Ratnesh Mishra, Mrs. Manvi Dhawan, and the principal of the respective school. It's a very good morning to every one of you. The winter is approaching. In fact, it is in some of the stage of the winter. And the great part is that in this winter and this proper COVID situation, we are here to learn something. Dear students and gentlemen, we are here with a team of strong entrepreneurs, which includes the team as good as involving Mr. Ratnesh Mishra, Mr. Shankar Kumar, Engineer Manvi Dhawan. It has been always a great opportunity. Whenever I have got a call and I have got an opportunity to interact with you all, it gives me immense pleasure to come for such a noble cause and to nurture the vibrant students of this current generations who are going to uphold the scientific arena of our great country. Dear students, it is not, it doesn't matter how much we are going to get through this particular IDVM foundations, which is going to for an hour or so, these presentations overall. But the idea which will be shared by these great people who have proved their metals in the field of satellite technology as well as engineering aspect, that might put a vibrant string in your mind so that many of you will eager to come and play your part by learning the satellite technology, by learning various technologies, or by doing or by getting connected through this great institutions, Igniting Dream of Young Minds Foundation, and it might come for a sole cause of our great nation. Gentlemen, this is a platform where you can explore yourself. This is a platform where you will hear the saga of few entrepreneurs like Mr. Nesh Mishra, Manvi Dhawan, and many more. They will tell you their own story, how they were able to achieve the milestone created by themselves. This is a saga which will tell you, even for that matter, business profile, how Mr. Shankar Kumar is going to work for that particular. This is a platform which will give you what is total insight about the latest technology. This is a platform which will connect you from here to NASA to other space agency across the world. This is a platform which will nurture some kind of technical vibrant strings in your mind. This is a platform which will help you to do well in life. This is a platform where if you will get connected, you are going to have a nice career ahead.
gentlemen, and my dear students. We are the part of one of the premier technical institutions of the country, not of the country, even for the world. We must tell you that the technology and its applications, these all are going to come through your hard work. The facilities and the platform which is provided by few of the institutions are unmatched. But to make you and to motivate you to do well in life for yourself and for your country, it is the students who have created their histories, who have got awarded for their hard work, who all have worked very hard to prove their mettle in very early stage of life. Whenever we are hearing to these peoples, they are sharing their bright ideas. They are sharing how they have worked, how at the same time, how they have worked as a technical entrepreneur with a business mind. These are the people, those who will tell you how they have managed the resources in their favor, in spite of all the constraints which they were facing in their life, and how at such an early stage they have proved that a man can do any wonder. Now, what these people have done, for that the country and other countries are striving very hard. Even many of the country, not India, even in our neighbor, they are striving very hard to get into a satellite technology. But these people, they have proved without the support of any states, without the support of anyone else. These people, they have worked day and night. Now, at the student of class 7 to class 3, or even from class 1 to high school standards, I must tell you all that this vibrant attitude that will come in your mind only when you have some leaning towards this particular technology. And what is the IDYM is doing is exactly that. They are just doing to give you a string to to get hold of those strings and move towards technical parameters. One of you or many of you all will go through this particular path. I am very hopeful that many of you will be able to do a great job. Last, मैं आप सबसे यह कहना चाहता हूं कि आप लोगों की मेहनत और आप लोगों का लगन और IDYM यूनाइटेड ड्रीम ऑफ यंग्स माइंड का जो इंस्पिरेशन है, अगर ये सब एक साथ अगर मिल जाए और आप लोग अगर कुछ अच्छा करना चाहें, nobody is going to stop you. आने वाले टाइम में, अभी आने वाले कुछ समय में हमारे जो इंजीनियर्स होंगे वो आपको बताएंगे. They will tell you their own saga. वो अपनी कहानी बताएंगे, वो अपनी स्टोरी बताएंगे. They will tell you how to go about it. वो बहुत सारे आपके क्यूरियस क्वेश्चंस होंगे, उनको वो रिप्लाई करेंगे. They will tell you each and everything so that you must get into that. And मेरी ये उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग उसके बिना पर, आप उसके रास्ते पर चल के आप लोग एक अच्छा काम कर सकते हैं और अपने परिवार के साथ साथ अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं. आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद. माय बेस्ट विशेस टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर ज्वाइंड हियर एंड स्पेशल थैंक्स टू द प्रिंसिपल हु आर कोऑर्डिनेटिंग दीज ऑल इवेंट्स. थैंक यू सो मच. Thank you so much, Engineer Deepak Sharma ji. Now I request Engineer Ratnesh Misra. I just give you a small introduction about him. Ratnesh Misra, I think around now he is 24 or 23. I don't know his exact age, but I know him when he was in IIT Bombay. And what was his age? So 20-year-old, 20 साल की उम्र और 22 साल में भारत के लिए सैटेलाइट लॉन्च करना. तो भी बच्चे आप लोग भी 10th क्लास में हो गए या 9th क्लास में हो गए, लगभग हो गए. तो ऐसा टारगेट बनाओ 6 साल में कि हमें एक सैटेलाइट लॉन्च करना भारत के लिए, और आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है. और आपकी प्रिंसिपल मैम जो है काफी पॉजिटिव है. आई एम वेरी थैंकफुल टू हर. मैंने मैम को एक बार रिक्वेस्ट किया और उन्होंने वर्कशॉप के लिए हाँ कर दिया. ये बहुत ग्रेट बात है. तो मैं आप लोगों को, अभी आप लोग काफी समय से वेट कर रहे हैं कि रत्नेश मिश्रा जी क्या बोलने वाले हैं, तो मैं आप उनको माइक हैंड ओवर करूंगा. प्लीज रत्नेश मिश्रा जी प्रोसीड. Yes, Ravi ji, thank you so much for this, and thank you Deepak sir. So हम स्टार्ट करते हैं इस चीज का कि किस तरह से हमने ये पूरी चीजें स्टार्ट की. और so I am Ratnesh Mishra, who was part of प्रथम IIT बॉम्बे स्टूडेंट सैटेलाइट. ये एक सैटेलाइट जो कंप्लीटली स्टूडेंट्स ने बिल्ड किया था, IIT बॉम्बे के स्टूडेंट्स ने. तो आप सभी संडे मॉर्निंग अगर आप ये वर्कशॉप अटेंड करने आए हैं तो आई एम श्योर
सैटेलाइट, स्पेस और स्टार्स, इन सब चीजों से आप डेफिनेटली इंटरेस्टेड होंगे। तो सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग आई वुड जस्ट मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जिसका आप आंसर यस या नो में कर सकते हैं, या अगर आपका वीडियो ऑन है तो आप हाथ रेज करिएगा अगर यस है तो, और जो भी आपका आंसर होगा वो मैसेज पे भेजिएगा, ठीक है, चैट पे। तो पहला क्वेश्चन, क्या, एंड दिस इज फॉर ऑल, लाइक ऑल पेरेंट्स, अगर हैं पेरेंट्स बैठे हैं या टीचर्स भी बैठे हैं तो उन सब के लिए, क्या आपने कभी भी अपने बचपन में या आपने कभी भी जिंदगी में ये सोचा है कि मैं आसमान छूऊंगा? कोई यस, नो? ओके, so you can Yes, all sir. you can message in the chat box. Okay, yes, yes, आसमान छूने का सपना देखा Yes, है आपने? sir. Yes, sir. बच्चों आप लोग माइक ऑन मत कीजिए बच्चों, आप लोग क्या करो, आप लोग Mic on बेटा, मत करो। आप लोग मैसेज बॉक्स में आप लोग डालो, क्योंकि I पूरी can मीटिंग see बेटा रिकॉर्ड हो all- रही है, तो आप लोग Great. प्लीज मैसेज बॉक्स में डालो। दूसरा क्वेश्चन, ओके, दिस इज फर्स्ट, एंड दूसरा क्वेश्चन, सर आपका माइक म्यूट है। सर आपका माइक म्यूट है। So your voice is not Okay. audible. yes, yes, yes. So फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने पूछा, आई कैन सी लॉट ऑफ यस फ्रॉम एवरीवन। दूसरा क्वेश्चन, क्या आप सभी ने दुनिया घूमने के सपने देखे हैं कि मैं पूरी दुनिया घूमूंगा, आई विल रोम अराउंड द होल वर्ल्ड? ओके, ओके, यस, यस, यस। तो दीज टू थिंग्स, ये जो दो सपने हैं, ये दो क्वेश्चन हैं, ये हम सभी अपने बचपन में कभी ना कभी, ऑल टीचर्स, पेरेंट्स, ये सब वो सपने देखते हैं, ठीक है। मैंने पर्सनली वो सपने पूरे किए कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक प्रोजेक्ट का पार्ट था, प्रथम, जो वो एक सैटेलाइट है जिसने ये दोनों सपने पूरे किए। कैसे? तो दूसरा सपना किस तरह से कि वो सैटेलाइट अर्थ के चक्कर लगाता है, हर 90 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट करता है विथ ए स्पीड ऑफ 7 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर प्रथम होता और मैं पंजाब के लिए यहाँ से स्टार्ट करता तो शायद 5 मिनट में आपके घर पर हो, या उससे भी कम टाइम। तो वो जो स्पीड से वो पूरा हर 90 मिनट में एक धरती का चक्कर काटता है। दूसरा चीज, उसने, उस सैटेलाइट ने नॉट जस्ट आसमान, ठीक है, आसमान से भी ऊपर स्पेस टच किया। ओके, तो इस तरह से ये जो दोनों चीजें हैं वो उससे लिंक्ड है। तो इसीलिए हम प्रथम की जो जर्नी है, उस जर्नी को हम कहते हैं जर्नी ऑफ ड्रीम, सपनों की जर्नी। ओके, तो इसीलिए तो इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि क्या प्रथम की चीजें थी, किस तरह की स्टोरीज थी, एंड उससे हमने क्या क्या चीजें सीखी। सो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर एक्साइटेड अबाउट दिस। अच्छा, दूसरा एक और चीज आपसे पूछूंगा, आप सब मैसेज करिएगा चैट बॉक्स में। आप जब आसमान में देखते हैं तो क्या दिखता है आपको? क्या क्या दिखता है? ठीक है, कुछ भी, जो भी आपको दिखता है, जो आप आसमान में जब देखते हैं, स्टार्स, ओके, क्लाउड, ऑल मैसेज, ओके, मून, स्टार्स, क्लाउड, सन, ओके, ओके, ग्रेट, ग्रेट। तो ओके, लाइफ, वाओ, सुपर्ब, सुपर्ब। सो ऑल वेरी एक्साइटेड स्टूडेंट्स। तो जब भी आप आसमान में देखते हैं, आपको इतनी सारी जो चीजें हैं, क्या उनकी कोई लिमिट दिखती है आपको? स्पेस एक अनलिमिटेड ऐसी जगह है जहां पर आप सिर्फ अगर चांद पे भी रिसर्च करने जाएंगे तो आप अनलिमिटेड रिसर्च कर सकते हैं। सिर्फ तारों पे अगर आप फोकस करेंगे तो नए सारे कॉन्स्टिलेशन, नए स्टार्स, नए ध्रुव तारे से लेके सप्तऋषि तारे तक हर चीज आप उस पर खोज सकते हैं। अच्छा, अगर आप सिर्फ अंधेरे पे भी फोकस करें तो भी आप अंधेरे में ब्लैक होल या और बहुत सारी चीजों पे रिसर्च कर सकते हैं। तो इसीलिए स्पेस एक ऐसी जगह है, ये एक ड्राइंग बुक की तरह है आप सभी के लिए, कि आप इसमें जो चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं, कोई वो नहीं, और हर चीज में आप अपने हिसाब से रिसर्च कर सकते हैं इस तरह से। तो ये एक स्पेस आप लोग के लिए एक ड्राइंग बुक की तरह है जिसका कोई लिमिट नहीं है, और हम उस चीज पे एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। और आज की डेट में सैटेलाइट जो है, ठीक है, सैटेलाइट का एक्चुअल इस्तेमाल क्या है, ठीक है। आप अच्छा, किसी को पता है कि हम सैटेलाइट कहाँ कहाँ यूज करते हैं? जस्ट मैसेज पे आप कुछ भी जो है वो मैसेज पे भेजिएगा। सैटेलाइट का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं?
ओके, कैसे कहाँ कहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं? ट्रांसमिशन, वेदर, ओके। तो आप सभी, हर चीज जो आपके आसपास है, सोलर, स्टार, सब चीज आपके सैटेलाइट से जुड़ी हुई है। ब्रॉडकास्टिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसमिशन। वाओ, वेरी गुड, वेरी गुड। आई एम सो एक्साइटेड टू सी ऑल ऑफ योर आंसर्स। नाइस, नाइस। तो सबसे पहली चीज कि आपके पास मोबाइल है। आज हम जो कर रहे हैं अभी, ठीक है, अभी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये आप मेरी तरफ से जो वॉइस जा रही है वो आपको रिसीव हो रही है, वो किस तरह से हो रही है? वो सैटेलाइट की वजह से हो रही है। आप टीवी देखते हैं, सैटेलाइट की वजह से होता है। आसपास का हर चीज, जैसे आप लोगों ने बोला, वेदर, सब कुछ सैटेलाइट के थ्रू अचीव होता है। तो इसीलिए उसकी जो इम्पोर्टेंस है, आप सैटेलाइट के बारे में गूगल कर सकते हैं, राइट? आप सारी डिटेल्स जो है वो, उसके लिए हम जरूरी नहीं, आप वो नॉलेज कहीं और से भी जान सकते हैं, चीजें जान सकते हैं। बट वाई आर वी हियर टू एग्जैक्टली टेल यू कि जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट बनाना और चीजें करना, सैटेलाइट इज नॉट दैट कॉम्प्लेक्स सैटेलाइट जो हमें हमेशा सुनने में आता है। बट सैटेलाइट आपके आसपास होने वाली हर चीज में है, आपके आसपास होने वाली हर डेली एक्शन में। अच्छा, कैसे? तो चलिए मैं आपको अगर ये कहूं कि सैटेलाइट भी मास्क पहनता है, तो अच्छा, अभी के डेली रूटीन में सबसे इजी डेली एक्शन तो मास्क है, राइट? कोविड के टाइम पे। एंड इफ आई टेल यू कि सैटेलाइट भी मास्क पहनता है, तो आर यू सरप्राइज इनफ कि वो वहां पर स्पेस में तो कोई कोविड का सिनेरियो नहीं, तो फिर क्यों? तो जिस तरह से हर हर पार्ट हमारा लिंक होता है, तो उसी तरह से सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट के ऊपर आपने देखा होगा गोल्डन कलर की लेयर होती है, ठीक है? तो बहुत सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट में गोल्डन लेयर होती है, वो उसके लिए एक मास्क की तरह काम करता है। कैसे? कि जैसे स्पेस में तो बहुत सारे रेडिएशन होते हैं, तो उनसे बचने के लिए सैटेलाइट वो मास्क पहनता है, ठीक है? अच्छा, आप सभी लोग खाना खाते हैं एनर्जी, फूड एनर्जी के लिए। अच्छा, सैटेलाइट क्या करता होगा? सैटेलाइट को एनर्जी कहाँ से मिलती है? सन से। गुड, गुड, गुड। तो मैसेज पे रिप्लाई करो, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो जिस तरह से हम खाना खाते हैं एनर्जी के लिए, उसी तरह से सैटेलाइट को पावर मिलती है, वो जादू की तरह, सनलाइट से, तो वो सोलर पैनल से। तो इसी तरह, अच्छा, और क्या चीजें हो सकती है? जैसे आपके हाथ पैर होते हैं, राइट? आंख होते हैं, सेंस, आंख सेंस करते हैं हमें किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। उसी तरह सैटेलाइट पे होते हैं छोटे छोटे सेंसर, जो उसको बताते हैं कि वो कहाँ पर है, कहाँ पर जाना है, राइट? तो स्पेस में जब किस ऑर्बिट में हम घूम रहे हैं और किस तरफ हमें डायरेक्ट करना है। क्योंकि हो सकता है, अच्छा मान लीजिए आप वहां से सिग्नल भेजते हैं, आप सभी को ये पता है कि सिग्नल, सैटेलाइट जो है वो सिग्नल भेजता है अर्थ को, ठीक है? शायद आप लोगों ने राजी मूवी देखी होगी, तो राजी मूवी में वो कोड भेजती है, डॉट डैश के फॉर्मेट में कोड भेजती है, राइट? तो वो कोड वहां से रिसीव होता है एंड फिर उसको हम डिकोड करते हैं कि ये एक्चुअल कोड क्या है, सिग्नल क्या है। तो उसी तरह से सैटेलाइट हमें सिग्नल भेजता है। और सिग्नल हम कहाँ रिसीव करते हैं? हम ऐसे, सैटेलाइट इंग्लिश, हिंदी या पंजाबी में तो बात नहीं करता है, राइट? तो इसीलिए वो कोडेड सिग्नल में बात करता है। तो हम उसको कहाँ रिसीव करते हैं? हम उसको रिसीव करते हैं ग्राउंड स्टेशन। तो ग्राउंड स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जहां पर हम सैटेलाइट, किसी भी सैटेलाइट के सिग्नल रिसीव करते हैं। तो इस तरह से तो अब वो सिग्नल जो है वो कहाँ पर पॉइंट कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें जानने के लिए ये इसके पार्ट्स होते हैं। ओके, तो आई जस्ट शेयर दिस स्क्रीन टू एक्चुअली शो यू कि व्हाट एग्जैक्टली द सैटेलाइट इज एंड कैसा था वो प्रथम का सैटेलाइट। जस्ट, तो आपने अभी सुना कि सैटेलाइट बनाने के लिए और सैटेलाइट कैसे कोड जनरेट करती है, कोई उसकी लैंग्वेज नहीं होती इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी और असमी, तो उसकी लैंग्वेज होती है मोर्स कोड, जैसा कि आपको रत्नेश ने बताया। मैं प्रिंसिपल मैम को भी उसका ऑडियो एक भेज दूंगा, हमारे पास है, तो वो ऑडियो सुन सकते हैं आप लोग, बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो। सो वी विल शेयर टू हर सून एंड सी विल, ओके प्लीज रत्नेश जी प्रोसीड। बिल्कुल, बिल्कुल। सो वो सिग्नल हम आपको भेजेंगे। और क्या पता इस वर्कशॉप के बाद आप में से कोई बच्चा बोले कि मुझे ग्राउंड स्टेशन बनाना है, मुझे सैटेलाइट बनाना है,
और आपका खुद का ग्राउंड स्टेशन जिसमें आप किसी भी सैटेलाइट का सिग्नल रिकॉर्ड करके उसको सुन सकते हैं कि किस तरह से वो भेजता है। तो क्यों नहीं इसके बाद बिल्कुल वो भी किया जा सकता है, सोचा जा सकता है। तो हमने कई सारे इसके अंडर बहुत सारे स्टेट्स में हमने वर्कशॉप की थी, तो उनकी वो पिक्चर्स थी। एंड यस, तो आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये है प्रथम सैटेलाइट, फाइनल सैटेलाइट मॉडल, जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था 26 सितंबर 2016 को। एंड वी रिसेंटली कवर्ड 4 years आफ्टर द लॉन्च। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सोलर पैनल लगे हुए हैं, एंटीनाज हैं, गोल्डन लेयर्स है, राइट। तो ये वो फाइनल सैटेलाइट है। एंड यस, वी कॉल दिस अ जर्नी ऑफ ड्रीम। तो ये जस्ट एक पिक्चर, जब आप इस पिक्चर को देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कब की रही होगी। ये डेफिनेटली उस दिन की है जिस दिन सैटेलाइट लॉन्च हुआ था इसरो के द्वारा। तो रवि जी, स्क्रीन शेयर्ड है मेरा? यस, बहुत अच्छे से दिख रहा है, एकदम क्लियर। ओके ओके, ठीक है। तो ये वो पिक्चर है उस टाइम की जब लॉन्च के दौरान, एंड जब इसरो से ये पूरा पीएसएलवी रॉकेट होता है जिसके थ्रू सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। एंड इसरो, आप सभी जानते होंगे कि इसरो सारे स्पेस मिशन जो इंडिया के होते हैं वो सब इसरो के थ्रू लॉन्च किए जाते हैं। एंड ये सब एक्चुअली स्टार्ट क्यों हुआ? ओके, हमने बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स जो पहले किए थे, कई सारी चीजें, और जिसमें रिमोट कंट्रोल कार, रिमोट कंट्रोल प्लेन, बहुत सारी और ऐसी चीजें थी। ठीक है, हम एक सिंपल क्वेश्चन के साथ, जिस पर्सन ने स्टार्ट किया था वो एक सिंपल क्वेश्चन था कि व्हाई नॉट वी बिल्ड द सैटेलाइट। ओके, तो सबका ये था कि सैटेलाइट, आप सभी जानते होंगे कि आप सबको लगता होगा कि साइंटिस्ट, जैसे वो आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट ही बना पाएंगे वो सैटेलाइट, बट बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो जैसा कि रवि जी ने सबसे पहले बोला कि आई एम एट द एज ऑफ 20 वी वर्कड ऑन इट। एंड उस टाइम हमने जब ये लॉन्च किया तो आप, और वो सब चीजें स्टार्ट हुई थी एक वर्कशॉप या किसी ऐसे ही माध्यम से जब उन्हें ये इग्नाइट हुआ होगा कि हाँ, हमें सैटेलाइट बनाना है। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भी इस वर्कशॉप के बाद कोई ना कोई बच्चा या पूरी टीम या प्रिंसिपल विल से कि आपके स्कूल का सैटेलाइट हो, तो पंजाब के आपके स्कूल का सैटेलाइट हो। एंड वो जब भी आपके सैटेलाइट, मतलब आपके स्टेट के ऊपर से पास होगा एंड वो डेटा कलेक्ट होगा, तो आपको कैसा फील होगा, आप वो सोच सकते हैं। तो यस, थिंक ऑन इट कि व्हाई नॉट यू बिल्ड द सैटेलाइट। तो यस, इसका एक्चुअल जो सैटेलाइट हमने भेजा था उसका काम था, उसका हर एक का मिशन विजन होता है। तो उसी तरह से इसकी चीजें थी कि ये इलेक्ट्रॉन मेजर करता था, इलेक्ट्रॉन काउंट करता था। तो जैसे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स है, उनके बीच में एक लेयर होती है आयोनोस्फीयर, जहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। तो उसका काउंट ये सैटेलाइट करता था। एंड वो क्यों जरूरी था कि जैसे आपके पास मोबाइल में जीपीएस सिग्नल आता है, राइट, तो वो सिग्नल वहां से आता है, तो वो जो सिग्नल्स हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अगर हमें पहले से वो डेटा पता होगा तो हम और बेटर रिजल्ट पा पाएंगे, राइट। एंड एक इसके अलावा दूसरा भी चीज था जो सुनामी प्रेडिक्शन में था, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सुनामी भी प्रेडिक्ट की जा सकती है उसके माध्यम से। यस, तो आप सभी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो जर्नी है, ये जर्नी जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं या जो हम बता रहे हैं सैटेलाइट की जर्नी, हमारे लिए ये जर्नी एक दिन की नहीं थी कि आज काम किया और कल हो गया, न ही एक हफ्ते की थी, न ही ये एक महीने की थी, ओके, न ही ये एक साल की। तो ये 8 लॉन्ग इयर्स की जर्नी थी 2008 से 2016 तक, जिसमें बहुत सारे लोग आए, दे पास ऑन द नॉलेज एंड बहुत सारी चीजें। तो इस तरह से ये हमारा रूटीन हुआ करता था कि आप इवन यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लोग जो टेस्टिंग कर रहे हैं सैटेलाइट पे, ये जो डेली रूटीन अपार्ट फ्रॉम बाकी सारी चीजें कॉलेज की जो थी उसके अलावा, किस तरह से ये स्टार्ट किया एंड चालू किया गया।
सो अच्छा, आप सभी से एक और चीज ये शेयर करूंगा कि आप सभी के घर में चेयर या लैपटॉप या कुछ चेयर होगी मान लीजिए, ठीक है, चेयर टेबल। तो चेयर टेबल आप लोग जब लाते हैं तो कैसे लाते हैं? या तो आप मतलब अपनी बाइक या अपने व्हीकल पे ले आएंगे, ऑटो, गाड़ी, राइट। सैटेलाइट को कैसे ले जाते हैं स्पेस में? सैटेलाइट को ले जाते हैं रॉकेट के थ्रू, पीएसएलवी के थ्रू, ठीक है। जब चेयर पे ज्यादा से ज्यादा कितना 50 केजी, 60 केजी, 100 केजी का इंसान बैठेगा, ठीक है। सैटेलाइट पे क्या होगा? सैटेलाइट पे वो लॉन्च के लोड लगेंगे, ओके। जब भी चेयर का कोई भी पार्ट खराब होता है तो आप क्या करते हैं? या तो खुद से जुगाड़ करते हैं कि चलो इसको ठीक करते हैं, या फिर किसी मैकेनिक को बुला लेते हैं, या फिर किसी सर्विस इंजीनियर को बुला लेते हैं, ठीक है, और इस तरह से वो रिपेयर कर लेते हैं। क्या इमेजिन कर सकते हैं कि सैटेलाइट जो स्पेस में है, उसको हम, उसमें अगर कुछ खराबी आई तो हम क्या करेंगे? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इसरो को कॉल किया है, इसरो हेल्पलाइन सेंटर, प्लीज सेंड एन एस्ट्रोनॉट, तो मेरा स्पेस में सैटेलाइट खराब हो चुका है एंड प्लीज जाओ और सही करो? बिल्कुल नहीं, राइट। तो ये फिजिबल ही नहीं है कि आप वहां पर जाके वापस सही करें उसको, या कोई एस्ट्रोनॉट वहां जाके सही करे, राइट। तो इसीलिए जो चीज यहाँ अर्थ पर होती है और जो स्पेस में भेजी उसमें वो डिफरेंस जो आता है कि, तो अभी आपके साथ मानवी धवन जी जुड़ेंगे, उनका कहना है, मैं एक लाइन उनसे कॉपी करूंगा कि स्पेस डजंट गिव यू सेकंड चांस, ओके। तो स्पेस में कभी भी आपको दोबारा मौका नहीं मिलता अगर वो चीजें खराब हो गई या चीजें हो गई। तो इसीलिए इस मिशन में क्रूशियल होते हैं, बहुत सारे प्रिसीजन इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी क्वालिटी चेक्स होते हैं। तो ये सब चीजें जो आप धीरे धीरे सीखेंगे कि किस तरह से हमें वो चीजें इंपॉर्टेंट। तो ये चीजें बहुत जरूरी है जब आप कोई भी स्पेस मिशन में काम कर रहे हैं, कोई भी लिंक जो सैटेलाइट या स्पेस से या इवन मिसाइल से रिलेटेड अगर कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें ये प्रिसीजन बहुत जरूरी। तो आप सभी के साथ एक वीडियो छोटा सा शेयर करूंगा लॉन्च का, एंड देन आई विल रिक्वेस्ट मानवी टू डिस्कस अबाउट दैट। बच्चों माइक ऑन मत करो, बच्चों माइक ऑन मत करो, मीटिंग रिकॉर्ड हो रहा है, प्लीज डोंट ऑन द माइक एवरीवन। यस रवि जी, जब स्क्रीन दिखेगा तो बताइएगा। हाँ ठीक है ठीक है। बच्चों आप लोग माइक प्लीज ऑन मत कीजिए, मैं आप सभी से देखो बेटा, ये प्रथम सैटेलाइट के वीडियो लॉन्चिंग का वीडियो लॉन्च है, बताइए रत्नेश जी। यस जी जी बिल्कुल। तो मैं ये लॉन्च वीडियो शेयर करता हूँ, तो आप सभी देखिएगा किस तरह से वो एक्चुअल लाइव लॉन्च उस टाइम पे हुआ था, एंड उसकी ये वीडियो है। The remaining two satellites, Pratham from IIT Bombay and PISat from PES University Bangalore, are from India. The main objective of Pratham is to estimate the total electron count, TEC, with a resolution of 1 kilometer by 1 kilometer. Have a feel of the launch. 10, 9, तो ये वो सीन जो जनरली हम टीवी वगैरह में देखा करते थे, वो काउंटडाउन 1, 0, plus तो आप 1, देख सकते हो, राइट। 2, 3, TS1 and ground upon ignited. 8 kilometer of normal. प्रक्षेपण जलन बिल्कुल सामान्य, आकाश की ओर उठता हुआ PSLV और जोरदार। We will hear confirmation of the separation of the Pratham satellite built by students of IIT Mumbai, and also followed just 10 seconds later the separation of PISat satellite built by the students of PES University Bangalore. जी हाँ, वैसे कई उपग्रह इसरो भारतीय विश्वविद्यालय की छोटा, जी हाँ, प्रथम उपग्रह भी अलग, प्रथम is separated. और उठता हुआ। बच्चों तो आपने देखा प्रथम किस तरह से सेपरेट हुआ, और मैं अभी आपके मन में क्यूरियोसिटी होगी कि ये सैटेलाइट कहाँ पर आती है और सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च होती है और कहाँ पर उसको प्लेस किया जाता है। तो हम एक छोटा सा आपको एनिमेशन वीडियो शेयर करेंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से वो सैटेलाइट रॉकेट इग्नाइट होता है, और रॉकेट इग्नाइट होने के बाद किस तरह से वो स्पेस में जाता है,
और किस तरह से सैटेलाइट का वहां से सेपरेशन होता है. So just hold for 1 minute and then after that Ratnesh ji and Manvi ji will continue to all of you. Just a second. Is standing majestically on the launch pad at the Sri Harikota range, ready to be launched. First stage and the 4 grounded strap-on boosters are ignited. PSLV is getting lifted off and clears the launch pad. Two air-lift strap-on boosters are ignited. 4 ground-lift strap-on boosters are burnt out and are separated. 2 air-lift strap-on boosters are separated. First stage is burnt out and separated. Second stage is ignited. Payload fairings are separated. The second stage is now burnt out and separated. Third stage is ignited. Third stage is burnt out and is separated. Fourth stage is ignited. Fourth stage is burnt out and the main satellite is separated. 3 microsatellites are separated. इस तरह से PSLV सैटेलाइट को सेपरेट करती है और मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा रत्नेश जी और मानवी जी से कंटिन्यू करें. Yes. So thank you Ravi ji for this video and also आप सभी ने लॉन्च वीडियो देखा. So आप सभी आई एम श्योर बहुत ही सुपर एक्साइटेड होंगे अबाउट टू दिस. जब आप फील कर सकते हैं वो एडवेंचर एंड वो चीज की जब आपका खुद का बनाया हुआ सैटेलाइट वहां पर रखा है और वो उस रॉकेट के टॉप पे रखा है एंड वो स्पेस की तरफ जा रहा है. तो यस, now I'll request Manvi Dhawan ji to tell you more about these things and also about some of the things which she worked in DRDO. So yes, over to you Manvi. Yeah, thank you. Hello. Good morning, everyone. It's great to see how Punjab, all the kids in Punjab are so excited and they have come to attend the workshop on Sunday. It clearly shows that how excited you are and how eager you are to learn. So first of all, hats off and congratulations to all of you children. So I will tell you a little bit about me कि मेरा जर्नी क्या था, मैंने क्या क्या किया. So जैसा कि रत्नेश ने बताया, I was part of satellite team. मैं रत्नेश से 1 साल पहले I was the captain, I was the leader of the satellite team प्रथम. And उसके बाद after completing my engineering from IIT Bombay, मैंने DRDO के साथ भी काम किया. तो DRDO के साथ I was working on missiles. आपको मिसाइल्स के बारे में पता होगा, जो हम जनरली अगर कोई हम पे अटैक करने वाला होता है तो हमारी आर्मी, हमारी सारी जो सेना होती है वो मिसाइल्स यूज करती है ताकि वो अटैक रोक पाए, राइट. तो हम कभी कभी डिफेंस में भी काम कर मिसाइल्स यूज करते हैं. कभी कभी अगर हमें किसी और देश को डराना होता है तो हम उसके ऊपर अपने मिसाइल छोड़ते हैं. तो मैंने मिसाइल्स पे भी काम किया है DRDO के साथ, जो हमारी डिफेंस में रिसर्च के लिए जानी जाती है ऑर्गेनाइजेशन. और उसके साथ साथ उसके बाद मैंने अपनी खुद की कंपनी, अपना खुद का स्टार्टअप शुरू किया, जो पहले स्पेस रिलेटेड था. फिर मैंने और भी नए नए ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड आइडियाज पे काम किया. तो इस तरीके से कह सकते हैं कि हम सभी के लिए, आज रत्नेश जी ने आपसे बात किया और जिसने इस सैटेलाइट प्रोजेक्ट की शुरुआत करी थी बच्चों, सप्तऋषि बंदोपाध्याय जिनका नाम था, उन्होंने, और ऐसे बहुत सारे हमारे जो टीम वाले बच्चे थे, लोग थे जो आपके जैसे ही इंजीनियरिंग में आगे चल के स्टूडेंट्स बने थे IIT बॉम्बे के, उन सभी ने मिलके जिन्होंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया, मैं आज आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि किसी की भी जर्नी प्रथम के बाद रुकी नहीं. प्रथम हम सबके लिए वो ड्रीम, जो हमारा ड्रीम लेके वो स्पेस में गया है,
हमारा हमारा हम सबका अपना अपना ड्रीम था जिसको लेके वो स्पेस में उड़ा है, उसके बाद हम कहीं नहीं रुके। आज सप्तऋषि बंदोपाध्याय नासा में साइंटिस्ट हैं, नासा के लिए काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग टीम के इसरो में काम कर रहे हैं, काफी सारे लोगों ने अपनी खुद की कंपनी बनाई है और वो इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट बनाने वाले हैं। तो मैं बता सकती हूँ कि हम सबको एक कह सकते हो एक एम मिला, एक दिशा मिल गई। क्योंकि आप एक बार अगर लाइफ में कुछ अचीव करते हो बच्चों, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मिलती है कभी भी, वो होता है कॉन्फिडेंस, राइट? आप छोटी सी अगर आप अपनी स्कूल की रेस ले लो, अगर आप रेस में जीत जाते हो या कोई गेम खेलते हो और उसमें जीत जाते हो, तो उसके बाद जो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि अब तो मैं करके दिखाऊंगा, कुछ भी कर सकता हूँ राहुल, राइट? तो वो कॉन्फिडेंस ने हम सबकी लाइफ को चेंज कर दिया और हम उसके बाद आगे बढ़ते ही चले गए। एंड स्पेस इज इंफिनिटी, राइट? तो हम कहते हैं अपने हमारे ड्रीम्स इनफाइनाइट हो गए, अभी हम कुछ भी करने का ठान सकते हैं एंड अपने हार्डवर्क पे वो कॉन्फिडेंस रखते हैं। सो दैट इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। सेकेंड चीज जो बच्चों में शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि अभी रत्नेश ने आपको बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीजों के बारे में बताया है, राइट? सैटेलाइट में ये होता है वो होता है, लेकिन बहुत प्यार से समझाया कि सैटेलाइट के भी आईज एंड ईयर्स होते हैं, वो भी एनर्जी चाहिए होता है। तो बिल्कुल उसी ही लाइन पे मैं बोलूंगी कि देखने में सैटेलाइट रॉकेट्स ये सब बहुत डिफिकल्ट लगते होंगे कि यार बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही ऐसे बॉर्न स्टार बच्चे ही इस चीजों पे काम कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि ये बहुत ही बेसिक जो अपने स्कूल में आप पढ़ोगे और आगे चल के अपने कॉलेजेस में पढ़ोगे, बिल्कुल उसी नॉलेज से मिलके बनता है। सब कुछ वही नॉलेज यूज होती है, इसमें कोई ऐसा बड़ी चीज नहीं है। सारी एजुकेशन जो आप लेते हो, अगर आपने दिल से हार्डवर्क करके आपने वो पढ़ा है, वही चीजें यूज होती हैं। बस ये चीज इतनी डिफिकल्ट क्यों बन जाती है, उसका एक ही रीजन है। अगर आप स्पेस चीज पे काम करते हो, स्पेस से रिलेटेड किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हो, उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है उसके क्वालिटी और प्रोफेशनलिज्म से। तो बच्चों ये दो चीजें क्या होती है, क्वालिटी एंड प्रोफेशनलिज्म? रत्नेश ने थोड़ा सा उसका आइडिया दिया है आपको ऑलरेडी। क्वालिटी का मतलब हुआ कि आज अगर आपका सैटेलाइट चल रहा है तो कल भी चलना चाहिए, 1 घंटे बाद भी चलना चाहिए, सालों साल तक चलना चाहिए। आप जो धरती पे चीजें सामान यूज करते हो, राइट? अगर वो आज चल रही है कल खराब हो सकती है, फिर किसी को बुलाना पड़ेगा सही करने, राइट? बट स्पेस में ऐसा नहीं हो सकता। तो स्पेस में जो चीज जा रही है, अगर वो आज की डेट में चल रही है, तो जब तक उसका मिशन प्लान्ड है, मिशन यानी जिसका जो काम उसे करना है, तब तक उसको रुकना नहीं चाहिए, उसको खराब नहीं होना चाहिए, राइट? वो होती है क्वालिटी। तो इतनी 100% श्योरिटी किसी चीज पे अगर आपको चाहिए कि वो 100% ऑल टाइम वर्क करती रहे, तो उसके लिए मेहनत, उसके लिए काम भी उसी तरीके से करना पड़ेगा, राइट बच्चों? आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप भी मतलब आलसी हो गए, चलो आज रहने दो, आज काम नहीं करते हैं, लैब में जाके कल चले जाएंगे, ठीक है, आज मस्ती मारते हैं। ऐसे नहीं हो पाएगा। तो वो लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म कहते हैं बच्चों कि जब आपको काम करना है डे नाइट, आपके पास टाइम, आपको अपनी स्टडीज पे भी ध्यान देना है, आपको प्रोजेक्ट भी करना है। एंड प्रोजेक्ट भी छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये प्रोजेक्ट जो नेशनल इंपॉर्टेंस का है, आप पे करोड़ों लगाए गए हैं। आईआईटी मतलब आपके कॉलेज ने, आपके स्कूल ने आपको पैसे दिए इतने सारे इस पे काम करने के लिए, उनकी उम्मीदें लगी हैं, पैसे से बढ़ के आपकी उनकी उम्मीदें लगी हैं आपके साथ। तो जब आप इतने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम करते हो, तो आपको फेल नहीं होना है, उस कह सकते हैं इंटरेस्ट के साथ और उस चीज को दिमाग में रखते हुए काम करना है। बट मैं ये भी बताना चाहूंगी कि ऐसा जरूरी नहीं होता है कि हर प्रोजेक्ट सक्सेस होता है। हर प्रोजेक्ट का अपना एक अलग क्राइटेरिया होता है, अलग तरीका होता है सक्सेस और फेलियर का। तो बच्चों, सक्सेस फेल की चिंता मत करो कि आप सक्सेसफुल ही होगी, बहुत मेहनत करोगे तो सक्सेसफुल ही होगे, वो ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन हमें अपने साइड से कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट मिशन पे आप काम कर रहे हो। तो इस वजह से स्पेस की चीजें इतनी ज्यादा डिफिकल्ट कंसिडर की जाती हैं। इसलिए इंडिया के या वर्ल्ड के बेस्ट साइंटिस्ट और बेस्ट इंजीनियर्स ये स्पेस रिलेटेड चीजों पे काम करते हैं, ठीक है बच्चों? एंड आखिरी में लास्टली
जो मैं आपके साथ जो चीज शेयर करना चाहूंगी बच्चों, वो ये है कि ये सारी चीजों की शुरुआत आपके एक ही चीज से होती है। कुछ भी करो, आप रोबोट बनाओ, आप सैटेलाइट बनाओ, आप कार बनाओ, कुछ भी बनाओ आप जीवन में, सब चीजों की शुरुआत होती है सिर्फ एक सिंपल चीज से। आपको ड्रीम्स देखने होंगे, आपको ये जानना होगा कि जब तक आप सोचोगे नहीं, जब तक आप चीजें यहाँ नहीं सोचोगे कि मुझे करना है, तब तक आप रियल में नहीं कर पाओगे, राइट? तो वो ड्रीम देखना बहुत जरूरी है, और इसीलिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी फाउंडेशन का नाम ही है इग्नाइटिंग ड्रीम्स ऑफ यंग माइंड। क्योंकि हमें रियलाइज हुआ कि जब तक हम ड्रीम नहीं देखेंगे, क्योंकि 50% ऑफ द काम, इवन उससे ज्यादा आप ड्रीम में ही कर चुके होते हो। आपने जिस दिन सपने देखे उसी दिन आपने सोच लिया कि ये करना है, उसके बाद तो बस इम्प्लीमेंटेशन है उसका, उसके बाद तो बस आपको गूगल से या कहीं और से बुक्स से आपको नॉलेज लेनी है, पढ़ना है एंड उसको इम्प्लीमेंट करना है, राइट? बट वो ड्रीम देखना हर कोई नहीं कर सकता, राइट? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स जो मैंने आपको आज बताई कि ड्रीम देखो, नॉलेज गेन करो अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेज में, प्रोफेशनलिज्म और क्वालिटी के साथ काम करो, अपने मिशन की इंपॉर्टेंस को समझो। एंड आखिरी चीज जो बताना चाहूंगी, जो इस किसी भी प्रोजेक्ट में काम की होती है, होते हैं लोग, राइट? रत्नेश ने आपको बताया होगा कि लोग किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, आपके दोस्त जो उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट? तो मैं आपको जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। आप मान लो आपकी स्कूल की कोई गेम्स की क्रिकेट टीम है, लेट सपोज, राइट? एक टीम है जिसमें बहुत ही हार्ड वर्किंग, बहुत ही मेहनती बच्चे हैं, उनको क्रिकेट बहुत अच्छे से नहीं आता है, लेकिन उन्हें पता है कि मेहनत कर सकते हैं एंड वो आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते। और एक टीम है जो बहुत ही ब्रिलियंट है, मतलब कमाल के बैट्समैन, कमाल के बॉलर, कमाल के फील्डर, सब कमाल के लोग हैं, लेकिन आपस में बनती ही नहीं है उनकी। कौन सी टीम है बच्चों जो लगता है जीतेगी? पहली टीम, राइट? फर्स्ट टीम, राइट? यस। तो फर्स्ट टीम क्यों जीतेगी बच्चों? एक सिंपल सी चीज है, नो मैटर आज के लेवल पे आपकी नॉलेज क्या है, आप क्लास में फर्स्ट आते हो कि लास्ट आते हो, आज जरूरी नहीं है ये सब चीजें। जरूरी ये है कि आप अपने दोस्तों के साथ, जो आपकी टीम है, इसको टीम वर्क कहते हैं, ये जो आपकी टीम है, आप उसके साथ कैसे काम करते हो, ठीक है? आप अपने ईगो में रहते हो, राइट? एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो, क्या चीजें करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड जब आप किसी इतने बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हो, तो जरूरी है कि सामने वाला कुछ बोल रहा है, आप कुछ बोल रहे हो, तो क्लैशेस हो सकते हैं, लड़ाइयां सब जगह होती है, लेकिन फिर भी आप एकजुट होकर काम किए, आप लोगों ने एक डिसीजन लिया और एक दूसरे की रिस्पेक्ट की और काम किया। तो ये 4 पिलर्स थे बच्चों जो मैं बताना चाहती थी आपको। हमेशा याद रखना, टीम के सबसे पहला चीज ड्रीम, इफ यू वांट टू डू इट एनीथिंग इन योर लाइफ। सेकंड चीज हमेशा याद रखना, नॉलेज आपको आपके बुक से, आप सब नॉलेज अवेलेबल है, कोई बड़ी चीज नहीं सीखनी आपको, सब नॉलेज आपके आसपास है, वही बेसिक नॉलेज है। प्रोफेशनलिज्म एंड क्वालिटी जो आपको बड़ा बनाएगी अपने काम में, राइट? एंड उसके साथ साथ आपकी टीम, जो आपको जरूरत है उस टीम की, जो आपके साथ मिलके आपकी हर प्रोजेक्ट में आपको सक्सेस दिलाएगी। तो इसी के साथ मैं अब मैं एंड करूंगी, मैं ज्यादा आप लोग का समय नहीं लूंगी बच्चों। एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, संडे मॉर्निंग आके कुछ नया सीखने की इच्छा रखना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। एंड you all should tap your shoulder that आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, great work, keep dreaming, keep growing. Thank you. Thank you, Manvi ji. Thank you so much for your inspirational speech, and it will help the student to guide their mind. And definitely, I hope that Punjab is always leading in Army, Air Force, and Navy. And definitely, I think this time from this school, we will get a space scientist, a group of space scientists. They will launch the satellite in coming year from ISRO. So I just want to play one video. Nana ma'am will address to all of you for 2 to 3 minutes, and then Denul will give the vote of thanks, and I will request the school authority to address from their side, and then after we complete the workshop.
One student, please unmute your video, audio. Please unmute. One student, please don't disturb the meeting. I am telling you. Please don't disturb the Harpa. Some name is Haridayal Singh. Don't disturb the meeting. Okay. Three, two, one. Three, two. और मैं अभी लैला मैम से रिक्वेस्ट करूंगा, उसके बाद डेनुल फ्रॉम तमिलनाडु, शी विल गिव यू वोट ऑफ थैंक्स. सो फर्स्ट आई रिक्वेस्ट लैला मैम, आर यू देयर इन द मीटिंग? लैला मैम, Hello. Yes, sir. please. Very good morning to each and everyone present over there. This is Laila Jacob, manager of IDYM. Very happy to meet you all in Punjab. Especially my great thanks go to the principal, Mrs. Amandeep, for her constant support as well as involvement in conducting this beautiful workshop for the children of St. Soldiers. I have no words to express my great gratitude to Engineer Ratnesh Mishra ji and Engineer Manvi Dhawan, who has already explained about their experiences when they were students and when they involved themselves in making the first satellite Pratham. So I know very well that you all have already got inspired and you will try your level best to achieve your target, because they have already invited you to participate in the journey of dreams, because you know very well that our mission and vision is already revolving on our Dr. APJ Abdul Kalam, who is known as the Missile Man of India, as well as the People's President. Our mission of IDYM is also being to make our country a self-reliant Atmanirbhar Bharat according to the vision of. Okay, fine. Okay, I think her mic is network issue is there. I just want to tell one thing before Denul will give the vote of thanks. Today you are connected with Punjab, in Chhattisgarh, in Madhya Pradesh, in Tamil Nadu, in Kerala, in Bihar and Maharashtra. So this workshop, people from Chhattisgarh, people from Tamil Nadu, people from Kerala, so many states are involved. Madhya Pradesh, Manvi ji from Madhya Pradesh, Ratnesh ji from Chhattisgarh, Punjab, you all are there. I can see the happy faces. And Tamil Nadu, Denul Asmi and Akshita. From Bihar, Engineer Deepak Sharma, and I am leading from Maharashtra right now. So yes, we are all together in one platform, that is Google Meet. So that igniting dream of young minds, bringing all together for the vision of Atmanirbhar Bharat. Yes, Denul. A warm and graceful morning to our most valued Honorable Chief Guest, Mr. Deepak Sharma sir from IIT Kharagpur. I feel grateful to welcome Engineer Ratnesh Mishra sir from IIT Bombay and Engineer Manvi Dhawan ma'am from IIT Bombay. Also, I welcome Laila ma'am and Ravishankar Kumar sir, founder of IDYM, Igniting Dreams of Young Minds Foundation, Saint Soldier Elite Convent School, Amritsar, Punjab, worthy teachers, my dear friends and everyone gathered here. It's my privilege to propose a vote of thanks and acknowledge the contribution of those who work really hard to make this workshop and satellite technology event for us. First of
of all, extend my most sincere thanks to the Almighty God for making today's event a resounding success. With His blessings and grace, we are able to make this event what it was. And our Igniting Dreams of Young Minds' main aim is to promote space and satellite education for every young mind, that is for the entire student community from any schools and colleges all around the world. We involve a group of people with several years of experience in education, ranging from people of education ministry, various schools and college principals, and young talented space enthusiasts. Igniting Dreams of Young Minds performs workshops, lectures on space and satellite for schools and colleges with distinguished speakers from multiple IIT, ISRO, DRDO, NASA scientists, and many such space experts. And short of word, last but not least, a big thank to each and every one of you who made this workshop joyful with their impressive explanation on satellite technology were enjoyed by each and every one of us present here. On behalf of Igniting Dreams of Young Minds Foundation, I extend a really hearty vote of thanks to everyone gathered here. Thank you, everyone. Okay, Denul, thank you so much. And now I request some of the management side from the school. Can you please unmute yourself and speak? Principal ma'am, are you there? Yes, yes, sir. Thank you so much. Thank you so Please, much ma'am. for such a great webinar today. I'm so happy that we got a chance to interact with all of you, and my children are also happy and excited about, as I can see from their messages. So I would like to say thanks to Dr. Ravi Shankar Kumar, Engineer Deepak Sharma, Engineer Ratnesh Mishra, and Engineer Manvi Dhawan, and last but not the least, Mrs. Laila Jacob, for constantly, pursuing all this effort. So it was a great webinar, the wise and the beautiful webinar, I must say, which will build an attitude of, building and knowing more about satellite. And I hope and I dream of it that someday my students would clear IIT and they join the good institutions of India, and they make the India better, and they fulfill the dreams. And definitely in what I see in my children, that is great potential. And this webinar has given them that space and that knowledge that will definitely ignite the dreams of building satellites and knowing space more. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. And now I request all the students, please unmute your audio and video and say in one shot, Bharat Mata Ki Jai. In one shot, we have to say Bharat Mata Ki Jai. Everybody on the video and say Bharat Mata Ki Jai. आवाज दूर दूर तक भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की बच्चों, जय। अगर आप भारत माता की जय। वेरी गुड। भारत माता की अगर जय। आप में से किसी को कुछ बोलना है आज के वर्ष के बारे में, Okay, beta, listen. माता की Okay, all right. Listen to him, beta. Listen to him. अगर किसी बच्चे को आज के वर्कशॉप के बारे में कुछ बोलना है तो आप अपनी वीडियो ऑन करो, ऑडियो ऑन करो और बोल सकते हो। कोई भी बच्चा जो बोलना चाहता है, आपके ड्रीम्स क्या आप बता सकते हो। यस, एनीवन? Yes, students, raise your questions, or if you have something in your mind, आप बोल सकते हो। बोल सकते हो, आप मैसेज बॉक्स में भेज सकते हो। अगर बोलने में आपको नेटवर्क का इशू है तो मैसेज बॉक्स में डाल सकते हो। आपके कोई क्वेश्चंस है स्पेस से रिलेटेड, या आप करना क्या चाहते हो, कैसे एक सैटेलाइट को अप्रोच कर सकते हैं, आप उसमें डाल सकते हो मैसेज बॉक्स में। आप ऑडियो ऑन भी कर सकते हो। So Raviji, please share the number also, so they can post their queries on email or phone number or anywhere. Already I have said 3-4 times. Great. Okay. बच्चों, आप अपना क्वेश्चन मैसेज बॉक्स में डालिए। किसी को कोई क्वेश्चन है तो बच्चों। यस, बोलो बेटा, बोलो, शाबाश। सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं लाइफ में बनना चाहता हूँ, और
मेरे एक दिन पापा ने कहा था कि IIT ज्वाइन कर ले, तो मेरे बचपन से एक ख्याल है कि मैंने IIT ज्वाइन करनी है, मैंने IIT ऑफिसर बनना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आई थिंक दीपक शर्मा, आर यू कनेक्टेड? Okay, fine. Ratnesh ji, are you there? No. Ratnesh ji. Yes, Ravi ji, I am on the other. Please, Yes, please yes. answer the question raised from the student side. हाँ, यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। सो मैंने अभी सुना कि वो काफी इंटरेस्टेड है and उनका कहना है कि IIT जाएंगे। सो आप डेफिनेटली उसके लिए काम करो। आप IIT जाओ या नहीं जाओ, आप इस देश का, जैसा कि मैम ने बोला कि इस देश का नाम रोशन करो, काम करो उस पे और सपने देखो, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। IIT आपको एक माध्यम है कि जिसके माध्यम से आप वहां तक और अच्छे से सोच पाते हैं, बट आप उसके अलावा आप कहीं भी रहें उसमें सोच सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो यस, बिल्कुल। प्रियंका का एक क्वेश्चन है कि सर विच स्टडी इज द बेस्ट फॉर सैटेलाइट स्टडी? ओके, सो ठीक है। सो सैटेलाइट से रिलेटेड ज्यादातर जो चीजें हैं, आपका अगर स्कूल में आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी साइंस से रिलेटेड चीजें हैं, वो सब धीरे धीरे आपकी सैटेलाइट से लिंक होती है। एंड आप बहुत सारे गूगल पे नासा के एंड इसरो के बहुत सारे फोटोज, पिक्चर्स, उनके डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं। इवन अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, एस्ट्रोनॉट्स के बहुत सारे वीडियोज हैं, जैसे सुनीता विलियम्स हैं, जो उनके बहुत सारे वीडियोज हैं जिनको देख के आप फील कर सकते हैं कि हाँ, एस्ट्रोनॉट में क्या होता है, स्पेस में कैसा होता है, क्या होता है, क्या चीजें। एंड इसके अलावा लास्ट में IDYM also going to launch some books on satellites, and you just stay connected to this, and definitely we will share all those knowledge with you. Yeah. ये क्वेश्चन है रत्नेश जी कि what is the weight of the satellite? I think Manvi ji is not there. I think Manvi ji is there. Excuse me. जो प्रथम सैटेलाइट था वो 10 किलो का सैटेलाइट था, 10 kg सैटेलाइट। एंड इसरो के बहुत सारे जो सैटेलाइट्स हैं वो रफली, मतलब आप 1 kg सैटेलाइट से लेके 500 kg तक भी सैटेलाइट्स होते हैं, काफी बड़े सैटेलाइट्स भी, एंड इवन माइक्रो सैटेलाइट्स भी। सो यस, ये रेंज है। क्वेश्चन इज देयर। कल्पना चावला के बारे में लोग जानना चाहते हैं, कल्पना चावला के बारे में। बिल्कुल। यस जसमीत, बोलो। पूछो बेटा, पूछो क्वेश्चन पूछो बेटा। सर मेरा ब्रदर IIT करना चाहता है, तो सर वो कहता है कि 11th और 12th के बाद वो क्या करे कि इस IIT में उसको। That's we have 2 IITians right now present here, so you'll get an idea from IIT Kharagpur and IIT Bombay also. Ratnesh ji, please answer her question, and I will request Deepak Sharma also to please answer her question. So Ratnesh ji, please proceed. Yes, बिल्कुल। So definitely इसका क्लियर कट आंसर मैं अगर आपको बोलूं तो वो है हार्ड वर्क। ओके, बट अगर इसको दूसरे और थोड़ा अच्छे तरीके से, कि द सिस्टमैटिक हार्ड वर्क, ओके, व्हिच इज नीडेड फॉर दीज 2 years। एंड सबसे पहले तो जैसा कि आपने बोला कि वो IIT करना चाहता है, ठीक है, तो पहली चीज ये उसका खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए कि वो करना चाहता है, ठीक है। अगर वो डेफिनेटली इंटरेस्टेड है, करना चाहता है, तो उस केस के लिए हम उसको बहुत सारे चीजें हैं जिनके थ्रू गाइड कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे तो हम इस पे एक सेपरेट सेशन भी रख लेंगे कि किस तरह से IIT की चीजें की जा सकती है। एंड बट हाँ, डेफिनेटली आपको सिस्टमैटिक ये 2 साल आपको उस पे पढ़ाई करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क, इसका कोई और शॉर्टकट नहीं है जिस तरह से। बट हाँ, ये एक अच्छी चीज है कि उसने बोला कि वो खुद से इंटरेस्टेड है। तो सबसे पहली चीज, आप जस्ट बिकॉज बाकी लोग कह रहे हैं IIT करना है, इसके लिए IIT करने का कोई वैल्यू नहीं है। सो अगर आप खुद से करना चाहते हैं और तो इसलिए सिस्टमैटिक पढ़ाई करिए। एंड यस, आप मुझसे कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं इससे रिलेटेड कोई भी और चीजें। तो मैं जनरली, ये बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी चीजें होती है, जिनके क्वेश्चन होते हैं, IIT के बाद क्या करना है, IIT के पहले क्या करना है, 11th 12th में क्या करना है, तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे आराम से। बिल्कुल। Yes. So yes, thank you so much. I think because some of them are not lost.
the network. Fine, ma'am. Yes, Ratnesh ji, can we conclude the session? Aman ma'am, can we conclude Yes, it? just Or you? yeah, Amandeep ma'am. So we will also. So I'm so excited to see everyone. We are really excited about this workshop, and later we can definitely continue. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो स्पेस के फील्ड में हम कई सारे बुक्स एंड कई सारे इवेंट्स इनिशिएटिव्स स्पेस में करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। और जैसे ही कोविड की सिचुएशंस नॉर्मल हो तो हम आपके स्कूल से कुछ सेलेक्टेड बच्चों को इसरो की विजिट भी करवा सकते हैं, जिसमें वो एक्चुअली साइंटिस्ट से मिल पाए, उनसे जान पाए चीजें और वहाँ के स्पेस एग्जीबिशंस देख पाए कि क्या चीज इंडिया में चल रही है स्पेस की फील्ड में। तो ये सारे इनिशिएटिव्स भी वी आर सून कमिंग अप, बस कोविड की चीजें थोड़ी बहुत और नॉर्मल हो जाए एंड देन विल आल्सो आई एम सो एक्साइटेड कि आप सभी के कोई भी इनपुट होंगे इससे रिलेटेड टू इम्प्रूव ऑन दिस थिंग्स। सो यस, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, ये बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स आपने बताए हैं। डेफिनेटली अगर हम इन बच्चों को इंस्पायर कर पाएं और ये बच्चे अपनी लाइफ में कुछ बेहतर सोच पाएं तो आई थिंक द जर्नी विल बी सक्सेसफुल। सुपर। यस मैम, थैंक यू। ओके रवि जी। तो मैम मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मीटिंग को क्लोज किया जाए। और बिल्कुल रमेश जी, सर, बिल्कुल। यस यस बच्चों, तो मीटिंग क्लोज करने के टाइम आप लोग को अपना माइक ऑन करना है और बोलना है जय हिंद जय भारत और मीटिंग लेफ्ट करना है। हर बच्चा जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। बच्चों आवाज, अरे आवाज नहीं आ रही है। पंजाब की आवाज तो पूरी दुनिया में जाती है। पंजाब जय हिंद जय भारत। 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 जय भारत। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। बच्चों, पंजाब एक ऐसा स्टेट है भारत का जिसने भारतीय सेना के लिए बहुत सारे योगदान किए हैं और पंजाब के कारण ही अपनी देश की सीमा का सुरक्षित है। जो 1971 की लड़ाई हो या 1962 की लड़ाई हो, 1965 की लड़ाई हो, सब जगह पंजाब पंजाब। जय हिंद जय भारत। पंजाब की आवाज तो बिहार तक पहुंचनी चाहिए, दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए, अमेरिका तक पहुंचनी चाहिए। बच्चों जोड़ लगाओ। यस 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 बेटे। A lot of people are here. यस यस बेटा, आप लोग लेफ्ट हो जाओ। मीटिंग सभी बच्चे, मीटिंग क्लोज हो चुकी है। रत्नेश जी, यू कैन क्लोज द रिकॉर्डिंग।